Hello, students. How are you all? I hope you all are doing well, and I appreciate all the students, those who have showed me the videos and their homeworks, whatever I'm saying, you're doing it. So I'm happy. So, yes, let's start with our next chapter, which is food safety. Now, we all know that food is the only source of nutrition for every being on earth, isn't it? And in the previous chapter, we have learned about the nutrition, right? Nutrition and what all things was required for getting a balanced diet, and how organism and plants occupy, or they acquire all the foods and the source of nutrition, right? So welcome in the next video of IEA school, Indrayani English School, and then we are going to move forward this topic today. So now in lockdown, I think you all must be eagerly waiting for the dishes which your mama prepares, right? Whether it is for breakfast, lunch, or dinner, you want something new, isn't it? You're not, you must be feeling like, okay, I should have something new, right? And all of us love to eat and try tasty food, whether it is good for our health. Sometimes it is good, sometimes it is not, but then yes, everything is in limit, can keep us safe and healthy. So what do you mean by food safety? All food are safe, isn't it? What do you think? Is all food which we eat is safe? And if it is not, then what is there which is to be known in this topic? So let's start. So now, in this, all constituents of food are basic constituents of food is your carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals, fibers, and water, which are necessary for the growth of our body. And we get these nutrients from food like wheat, jawar, pulses, right, vegetables, fruits, etc. What is carbs, or you can say carbohydrates? Carbohydrates is a type of, you can say, the glucose, or you can say the sugar, okay, which we get from wheat, jawar, bhakri, from all of these. Now you will say that all these substances, all these jawar, bhakri, all these things, they're not sweet. Then how ma'am is saying that it is sweet? So after digestion, I'm saying that after digesting these type of substances in food, we get amount of glucose, or you can say these are the type of, these they contain a type of starch, okay, and it mainly consists of carbon and hydrogen. So you can say it is carbohydrates. And then you have fats, proteins, and vitamins. Fats, again, you have all oil, tail, that is tail, ghee, all these things, or toop you say, is the source of fat. And proteins, then again, cereals, eggs, milk, fish, chicken, all these are the source of proteins. Vitamins and minerals you get from the vegetables and fruits, all right. Fiber, now this fiber content in your food should be in good amount. Why? Because it helps us to excrete the poisonous material from our body, all right, which we accumulate mainly after the digestion. So however, what will happen if these food materials are infected by insects or spoiled in any way? What will happen? Then the food is safe. Is it safe if it get infested by insect? अगर कोई insect आपके खाने में चला गया, या उसमें अभी वो इंसेक्ट रहने लगा, हाँ, और वो खाना आपका किसी तरीके से ख़राब हो जाता है, तो क्या आप कहोगे फूड इज स्टिल सेफ? Obviously no. So let's have the cause, let's know the cause. So food spoilage, as you over here, as you can see that in number one over here, A, you can see here is one bandicoot, or you can say rat, which is eating the stored grain, which is wheat. Over here, this vegetable vendor, or this lady, is selling fruits or vegetables, but then the place nearby is not clean, it's dirty, it's completely messy over here, right? And in B over here, if you see,
the food is being kept outside and it is not covered. The place where he is cooking, it's also open, so dust particle can sit on it, flies can sit on this, and then they can infest, right? They can infect the food. As over here, as you can see, the food which is stored in these gunny bags is not completely good in condition, because you can see this is not completely packed, so here is a leakage. All right, so this is how, because food is not kept properly, it can cause spoilage of the food. वो फूड को ख़राब कर सकता है। अगर खाना हमने अच्छी तरीके से नहीं रखा, साफ़ सुथरे ढंग से नहीं रखा, नहीं बनाया, तो हमारा जो खाना है वो ख़राब हो सकता है, राइट? सो नाउ नेक्स्ट, फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर फूड स्पॉइलेज। आप लोगों को क्या लगता है कि ऐसे कौन से वजहें होंगी जो फूड को ख़राब करने के लिए होंगी? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो फूड को ख़राब कर सकती हैं? सो व्हाट आर द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर फूड स्पॉइलेज? This means, oh my god, your favorite, even my favorite. I think all of us like pani puri and vada pav a lot. If not, then samosas, pizza for you all, right? Although there is no picture as such. Now, no, don't demand anything like this to your parents now, because ma'am has taught us today, so we are going to ask mom and dad for giving us this food. No, over here I'm just telling you to learn this topic, and yes, do not see this picture anymore, concentrate over here. So sometimes fruits or their skin turn black, right? Some food stuff give out a foul or bad odor. किसी किसी खाने से हमें जो खुशबू आती है खाने की वो अच्छी नहीं होती है। और कभी कभी कुछ फ्रूट्स के स्किन जो होता है वो काला हो जाता है। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू टेक बनाना, अगर उसका स्किन काला हो भी जाए तो वो इडेबल होता है, बिकॉज उसके अंदर जो है वाइट कलर का मैटर वो हमें खाना है। पर कुछ कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं अगर जिसका स्किन ब्लैक हो जाए तो हम उसे खा नहीं सकते, ठीक है? Now, such foodstuffs are not suitable for us to eat. Sometimes naturally available food materials are spoiled by wrong handling, as when they are overcooked or improperly stored, say in a damp place, then obviously it is going to cause spoilage of that particular food. Why? एक तो dampness एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जो जहाँ पे मॉइस्चर होता है वहाँ पे बैक्टीरिया होते हैं, और जहाँ पे बैक्टीरिया होगा वो फूड को स्पॉइल करेगा ही, राइट? तो आपको ये श्योर करना है कि जहाँ पे भी आप फूड को रख रहे हो, स्पेशली बारिश के मौसम में अगर आप वेजिटेबल्स लेके आते हो, अगर वो भीगी हुई हैं तो मेक श्योर कि आप उसे सुखा रहे हो और तब आप स्टोर कर रहे हो, क्योंकि अगर ज़रा भी मॉइस्चर रहा तो वो पूरी सब्जियों को ख़राब कर देता है, राइट? So these are the factors, some of the factors when we are handling the food. For example, if we are overcooking the food, अगर हमने खाना को ज़रूरत से ज़्यादा पकाया तो भी उसके न्यूट्रिएंट्स सारे चले जाते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो अ फैक्टर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड स्पॉइलेज. All right, so in such cases the quality of the food materials deteriorates यानी कि क्या? deteriorates मतलब उसका धीरे धीरे कम हो जाना या ख़त्म हो जाना, डिक्रीज होना, ठीक है? सो दे मे ऑल्सो बी स्पॉइल्ड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन. जब आप एक जगह से दूसरी तरफ लेकर जा रहे हो कुछ खाने की चीज़ों को या कोई भी चीज़ है, तो इस तरीके से भी वो ख़राब हो जाते हैं. सो कैन यू गिव मोर सच एग्जाम्पल्स ऑफ फूड स्पॉइलेज? आपको ये तो थोड़े बहुत ही हुए, राइट? खाने को ज़्यादा पका देना, मॉइस्चर होना खाने में, या फिर खाने को ऐसी जगह पे रखना जहाँ पे बहुत ज़्यादा नमी हो, राइट? और ट्रांसपोर्ट जब करते हो तब भी होती. तो आपको क्या लगता है और ऐसे कौन सी चीज़ें होंगी जो फूड स्पॉइलेज के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है? और एक और बात, अगर आप देखते हो तो सब्जियों का ख़राब होना या जो भी चीज़ है, फंगस वगैरह लगना, वो बारिश के मौसम में ज़्यादा देखा जाता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बारिश के मौसम में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा आता है हवा में, जिसकी वजह से जो लेदर की चीज़ें हैं, वुड की चीज़ें हैं, रेगजीन की चीज़ें हैं, उनके ऊपर फंगस आ जाता है. सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे नहीं, खानों पे भी आता है. अगर आपने कोई ब्रेड वगैरह रखी है तो उसमें वो स्पॉइल बहुत जल्दी होती है. उसका मेन रीज़न है डैम्पनेस, दैट मीन्स मॉइस्चर. ऑल राइट, बिकॉज एज हम जानते हैं जल ही जीवन है, और ये वाटर, स्टैग्नेंट वाटर
will provide the environment for the growth of these microorganisms which are not good. All right. Now next is the food stuff we consume, whether of animal or plant source, must be of the best quality. आपको क्वालिटी का भी ध्यान रखना है, राइट। जो भी आप खाना खाते हो, चाहे वो एनिमल का हो या प्लांट की तरफ से हो। आप जैसे मीट चिकन की बात करें तो वो एनिमल सोर्स से होता है, और प्लांट सोर्स से बात करो तो फ्रूट्स वेजीज आपके जो भी हैं। सो अदरवाइज वी मे फॉल प्रे टू डिजीज़ और इलनेस। अगर आप बेस्ट क्वालिटी का खाना नहीं खाओगे, और यू कैन से क्वालिटी इज़ रियली नीडेड। अगर आप कोई भी किसी भी तरीके का किसी भी लेवल का खाना खाओगे जो अच्छा नहीं होगा, तो ऑब्वियसली आप बीमार पड़ोगे, राइट। So food is said to be spoiled if there is a change in its color, order, texture, quality, taste, and there is a loss of its nutrient content. अगर nutrient का content भी कम हुआ, या कोई भी change उसके color में, खुशबू में, texture में, quality में है, तो these are indicating the spoilage of food. Now as you can see, wow, this is really good fruit, but then you can actually see so these food, as you can see, one is mango, then grape, then bananas, then you have apple, and but the last fruit, apple, you have two type of apple, right? One is quite well in condition, but another one is not. So how can you say that the other one, for example, if we talk about this apple, it is looking fresh and it has shiny the outer covering and it is looking delicious to it, मन कर रहा है ऐसे खा ले, right? पर ये क्यों नहीं, इसको देख के क्यों नहीं मन कर रहा है खाने का? बिकॉज हम देख सकते हैं कि देर इज़ अ चेंज इन कलर, कलर में चेंज है, टेक्सचर में चेंज है, क्वालिटी में चेंज आ गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिस इज़ गुड फॉर ईटिंग बट दिस इज़ नॉट। सो ऐसे आप देख के भी बता सकते हैं कि चीज़ें ख़राब हैं या नहीं, राइट। So, on a day out with our friends or our family, we enjoy mouth-watering dishes like pani puri, sev puri, pav bhaji, vada pav, pizzas, burgers. Wow, इतनी सारी चीज़ों का नाम लिया तो सबको भूख लग रही होगी, राइट। सो हम एन्जॉय करते हैं, राइट। नाउ बट हैव यू एवर गिवन अ थॉट टू हाउ और वेयर दे वर मेड? आपने कभी सोचा है कि किस तरीके से उसे बनाया गया है, कहाँ बनाया गया है, चीज़ें अच्छी तरीके से धोई गई थी बनाने से पहले या नहीं? तो हमारे मॉम डैड जो हैं, या जो भी गार्डियन के साथ आप रहते हो, ठीक है, वो हमेशा ऐसा क्यों कहते हैं कि बाहर का खाना ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, लेकिन ये तो इतनी टेस्टी चीज़ें हैं, राइट। कोई इसे बिना खाए कैसे रह सकता है? सो वी ऑलवेज से कि घर पे बनाओ, घर पे खाओ। वाई? बिकॉज वी हैव टू मेक श्योर दैट whatever we are eating is clean and it is made properly. So where they displayed and served hygienically. So ये भी पता होना चाहिए ना कि जहाँ पे भी खाना सर्व किया है वो हाइजीनिक था या नहीं था, या वो ओपन एयर में था, राइट। वॉट वॉज द सोर्स ऑफ द वाटर यूज फॉर प्रिपेयरिंग देम? कौन से पानी में खाना बनाया गया है, इसे भी बहुत ज़्यादा हमें सोचने की ज़रूरत है, राइट। सो डिस्कस ऑल दीज मैटर्स with your science teacher, which is me. Various kind of changes occur in food material. So if you think about all these things, then you really have to think why. Because जो भी आप खाना खाते हो उससे आप बीमार पड़ सकते हो। तो जब भी आप बाहर खाओ, आज से अगर आप बाहर खाना खाने के लिए जाते हो, तो ये हमेशा सोचना कि कौन से पानी में बनाया गया है, कहाँ पे सर्व हुआ है, ठीक है, और किस चीज़ों से बनी है ये चीज़ें, राइट। वो जो चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं, substances which is being used for making these all edible materials, mouth watering dishes, वो क्या सही थे, अच्छे क्वालिटी के थे, ऑलराइट। इसीलिए हम कहते हैं eat food which is probably, or you can say eat food which is made in home. Homemade food is the best food one can have ever. वरना बड़े हो जाओगे, हॉस्टल में जाओगे, फिर समझ में आएगा कि हाँ मम्मी के हाथ का खाना ज़्यादा टेस्टी था। समटाइम्स इवन डैड कुक, राइट, एंड इट कम्स आउट मच डिलीशियस। सो फॉर एग्जाम्पल, फ्रूट्स टर्न्स ब्लैक और चेंज स्टेट, मीट बिकम सॉर और पीनट्स बिकम रैंसिड। रैंसिड यानी कि उनका जो क्रंचीनेस होता है, जो आपका सपोज एग्जाम्पल पीनट्स यानी मूंगफली और शेंगदाने, राइट, वो उनका जो क्रंचीनेस होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एज रैंसिडिटी।
So all these changes occur due to factors within the फूड मटेरियल्स। ये सारे चेंजेस क्यों होते हैं? क्योंकि फूड के अंदर कुछ फैक्टर्स होते हैं जो रेस्पॉन्सिबल हैं उनके इन चेंजेस की वजह से, राइट? और कुछ बाहरी चीज़ें भी होती हैं। सो ऑफन फूड ग्रेन्स एक्सेट्रा प्रोड्यूस्ड इन फार्म्स आर डैमेज ड्यू टू वेरियस रीजन्स लाइक इम्प्रॉपर हैंडलिंग, improper storage, improper transportation, etc. Some food stuff like meat and milk are either acidic or alkaline. तो ये सारे चेंजेस हमें ज़्यादातर क्यों देखने को मिलता है? ये जो डैमेज है वो क्यों हमें मिलता है? ये डैमेज जो फूड में दिखता है वो क्यों होता है? वो बेसिकली इन चीज़ों की वजह से होता है, जैसे कि आपने खाने को अच्छी तरह से हैंडल नहीं किया। फॉर एग्जांपल आप बात कर रहे हो टमाटोज़ की, टमाटोज़ को अच्छी तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। अगर हैंडल नहीं करोगे तो वो फट जाएंगे, राइट? आप ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू फिर काफ़ी ज़्यादा लॉस आपको बेयर करना पड़ेगा। इम्प्रॉपर स्टोरेज में आप नमी है, कुछ चीज़ें में कुछ नमी है, तो अगर एक भी चीज़ ख़राब हुई तो वो पूरे के पूरे स्टोरेज में जितने भी वेजिटेबल्स हैं उसे ख़राब कर देगा। इम्प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन, अगर आपने पूरे मैंगोज़ है या पपायास हैं उनको आपने हीप अप, मतलब ऐसे ही बस डाल दिया कैसे भी फेंक के, तो वो अपने ही प्रेशर से जो पूरा पपाया हीप में है, सबसे नीचे जो पपाया होगा वो इतने अपने ऊपर इतने सारे प्रेशर को रह के वो नीचे दब जाएगा, राइट? सो यू शुड मेक श्योर दैट यू आर हैंडलिंग प्रॉपरली वॉट एवर यू आर ट्रांसपोर्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। स्पेशली फूड ग्रेन्स की अगर हम बात करें तो ये जो ग्रेन्स है, अगर आपने उसे ह्यूमिड प्लेस में रखा, जहाँ पे मॉइस्चर होता है वहाँ पे रखा, तो ये अपने आप ख़राब हो जाएंगे। सो इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन का, स्टोरेज का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। सिर्फ यही 3 चीज़ें नहीं हैं, और भी सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से फूड डैमेज हो सकता है, राइट? तो आपको क्या ऐसा लगता है, आप वो मुझे बताओगे। Now next, they may get spoiled due to chemical reactions or contact with metals. Sometimes foodstuffs may be spoiled due to the contamination by microorganisms or insect from the area, right? Over here as you see, now these are the certain things. Chemical reaction भी हो सकता है। अगर आपने suppose example आपने एल्यूमिनियम के वेसल में आपने कुछ खट्टी चीज़ें रख दी तो रिएक्शन होगा। तो ये सारे फूड स्टफ्स हम बोलते हैं जो खट्टे पदार्थ हैं, सब्सटेंसेस हैं, उनको आपको एल्यूमिनियम या जो चीज़ें हैं जिसमें रिएक्शन हो सकता है उस मेटल्स में नहीं रखना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न, राइट? नाउ नेक्स्ट टॉपिक विल बी हाउ एंड वेयर इज़ फूड वेस्टेड। कहाँ और कैसे फूड ख़राब हो सकता है। सो दिस विल बी द लास्ट टॉपिक फॉर द डे, देन वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट पार्ट। और येस, जैसे अगर आज हमने खूब सारे खाने की बात की है, तो येस, ट्राई समथिंग न्यू फ्रॉम योर साइड एंड मेक फॉर योर पेरेंट्स एज वेल. So, with the help of science and technology, India has grown great progress in the production of various foodstuffs. So, in the production of various foodstuff like cereals, fruits, vegetables, fish, as well as milk and milk products. And even so many people in our country and all over the world face the problem of hunger. Many do not get even one meal a day. Hence, it is our duty to prevent wastage of food wherever it takes place. आपको पता है हम जो एक दिन में खाना वेस्ट करते हैं, अगर हमने उसे कलेक्ट किया फॉर अ मंथ, ऐसे हम कितने ही गरीबों को हम उससे उस बचे हुए खाने से या कलेक्ट हुए खाने से अगर हम देखें, अगर उतना हम अमाउंट देखें, तो हम कम से कम 2 या 3 लोगों को रोज़ खाना खिला सकते हैं उतने अमाउंट में, जितना अमाउंट हम वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, मम्मी ने कुछ बनाया, हमको खाना पसंद नहीं आया, हमने उसे ऐसे ही फेंक दिया। पर इतना हमेशा याद रखना कि हर एक अन्न जो आप फेंकते हो, ठीक है, वो किसी का पेट भर सकता है, राइट? अब आप कहोगे हमने ख़रीदा है तो हमारा हक है, पर जिस किसान ने उसे उगाया है कितनी मेहनत से उगाया होगा, राइट? सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स और हुएवर सीज दिस वीडियो कि अपने खाने के वेस्टेज पे ध्यान रखें, उतना ही खाइए जितनी ज़रूरत है, और अगर वो बाकी बच गया तो ऐसा नहीं है कि आप उसे थोड़े समय के बाद खाएंगे तो वो ख़राब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसे 2-3 घंटे के बाद भी आप खा सकते हैं अगर वो खाने लायक हुआ तो, राइट? तो हमेशा ऐसा करना चाहिए कि आप उतना ही लें जितना आप खा सकते हैं। और फूड वेस्टेज जो है आज, जो पूरी दुनिया मिलके जितना फूड वेस्ट कर रही है, राइट, उतनी मात्रा में हम जो लोग हैं, जो भूखे लोग हैं, हमें उनके बारे में सोचना चाहिए। जब भी हम एक रोटी भी अगर फेंकें तो हमेशा ये याद रखना चाहिए कि वो एक रोटी किसी का पेट भर सकती थी, ठीक है?
सो यू जस्ट मेक श्योर दैट यू आर नॉट वेस्टिंग एनी फूड. अगर कुछ खाना पसंद नहीं आया तो आप पहले चेक कर लो ना खाना पसंद है कि नहीं, तभी आप उतना लो, राइट. लेकिन हम क्या करते हैं, हमें लालच इतना होता है कि हम बहुत ज़्यादा चीज़ें कुछ ले लेते हैं लेकिन हम बाद में नहीं खा पाते, राइट. तो ऐसा हमें करने से अवॉइड करना चाहिए. एंड रेस्पेक्ट फूड. जिसने भी फूड उगाया है उसने बड़ी मेहनत की है, भले ही आपने उसे पैसे से ज़रूर खरीद लिया हो लेकिन फिर भी आपका पूरा हक नहीं होता है उस पर. ऑल राइट. तो मेक श्योर दैट यू आर नॉट वेस्टिंग फूड. ऑल राइट. एंड रेस्पेक्ट फूड. हम अन्नपूर्णा भी कहते हैं, देवी भी होती है, उसमें हम बोलते हैं कि हर एक जो खाना खाते हैं भगवान हर कहीं है, फूड में भी होता है, राइट. तो जितना हम डिसरेस्पेक्ट करेंगे फूड का, हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि इस फूड से किसी का पेट भर सकता है, राइट. नाउ क्वालिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड. अब हम बात करेंगे कि कैसे ये जो फूड होता है वो वेस्ट होता है, कैसे होता है और इस चीज़ को हम कैसे रोक सकते हैं. वी विल सी दिस इन द नेक्स्ट वीडियो.